Hello, students. Welcome you all to our second session of our chapter number 12, that is sound. Students, we have started this chapter. In the previous session, we have discussed that how sound is produced, which are the various factors due to which sound can be produced, and then we have seen that how sound propagates, and then we have seen that sound needs a medium for its propagation. इसके लिए हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी किए थे. Today, let us discuss some more features regarding sound waves. Okay, students? Students, our today's first topic is that sound waves are longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves. But before that, you have to understand that what do you mean by longitudinal waves and transverse waves. ये दो टाइप के waves होते हैं, longitudinal waves and transverse waves. So let us see, students, we have already discussed that while a tuning fork is struck on a rubber pad, it produces what? Waves in the form of what? Compression and rarefaction. आप पहला डायग्राम देख सकते हैं. The region of high density, high pressure is called compression and the region of low density is called rarefaction. तो longitudinal waves क्या होते हैं? तो longitudinal waves क्या होता है? The waves in which the individual particles of the medium, we all know that waves actually क्या होते हैं, उसमें particles होते हैं, क्योंकि मीडियम तो चाहिए ही चाहिए. जैसे एयर है तो एयर के पार्टिकल्स ऐसे, तो जब वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो ही क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. तो इन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स दीज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस मीन्स द मूवमेंट ऑफ द कंप्रेशन एंड द रेयरफैक्शन. तो जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रहा है, अगर उसी डायरेक्शन, उसके पैरेलल डायरेक्शन में ही पार्टिकल्स अगर ऑसिलेट करते हैं, दे सिंपली ऑसिलेट टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं, तो सच वेव्स आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. Once again, what are longitudinal waves? The waves in which the particles of the medium move in the direction of the parallel to the direction of the propagation of the wave. है ना, जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, उसके पैरेलली अगर ऑसिलेट करते हैं, तो देन दे आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. है ना, यू कैन सी द फर्स्ट फिगर. जिस डायरेक्शन में वेव आगे जा रहा है, ये जो अपनी जो डिस्टर्बेंस है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, वो उसके पैरेलली आगे जा रहा है. सो वी कैन से दैट द साउंड वेव्स आर एक्चुअली लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. ओके, ये तो हुआ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जिसमें पार्टिकल्स जो है वेव के डायरेक्शन में पैरेलली ऑसिलेट करते हैं. बट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स वेव्स? Transverse wave is also a type of wave in which the particles do not propagate in the direction of the wave. It propagates in the direction perpendicular to the propagation of wave. वेव जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ऊपर नीचे वो प्रोपगेट करेगा. वेव अगर सीधा आगे जा रहा है तो उसके ऊपर नीचे परपेंडिकुलरली पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, अप एंड डाउन. इन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑसिलेट टू एंड फ्रो, आगे पीछे. और ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट करते हैं, ऊपर नीचे. Okay, so they are what? Transverse waves. In transverse waves, the particles oscillate in the direction perpendicular to the direction of the propagation of wave. So our first topic is that sound waves are longitudinal waves, and we have already seen that sound waves need medium for their propagation. So sound waves are also mechanical waves. Okay, अगर medium चाहिए होता है तो उसको हम बोलते हैं mechanical waves. इफ़ यू कंसिडर लाइट वेव्स, अगर हम लाइट वेव्स की बात करें, लाइट वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन. सो लाइट वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स. ओके, so students, once again let us see what sound does not travel in vacuum. Sound needs a material medium like solid, liquid or gas to travel and be heard. अगर हमको साउंड वेव सुनना है तो इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, है ना, बिकॉज दे रिक्वायर मीडियम. और साथ साथ में भी हमने देख लिया था दैट साउंड वेव्स आर ऑल्सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव? लेट अस सी द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स. तो साउंड वेव्स की चार कैरेक्टरिस्टिक्स है. वन इज एम्पलीट्यूड, सेकेंड इज वेवलेंथ, थर्ड इज टाइम पीरियड एंड फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. तो लेट अस सी हियर इन सबका डेफिनेशन क्या क्या है. फॉर दिस यू शुड रेफर ऑन पेज नंबर 164 ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 164 निकालो, उसमें 12.8 फिगर जो है जिसमें ग्राफ दिखाया हुआ है, वी हैव टू रेफर दैट ग्राफ. मैं आपको स्क्रीन पे भी ग्राफ दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको डेफिनेशंस करवा देता हूँ मैं. आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज एम्पलीट्यूड.
व्हाट डू मीन बाय एम्पलीट्यूड? The maximum distance moved by a vibrating air layer or either side of the original position is known as amplitude of the sound wave. एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, ये जो आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, तो उसका जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक एयर वाइब्रेट होता है, मैक्सिमम कितने ऊपर तक एयर जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ओके, द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय अ वाइब्रेटिंग एयर, है ना, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. एयर का पार्टिकल जहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे था, उससे जब उसको वाइब्रेशन मिला, उसको जब डिस्टर्बेंस मिला, तो वो कितने दूर तक आगे गया, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड मीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड आखिरकार है क्या? डिस्टेंस है, सो इट इज मेजर्ड इन मीटर्स. देन कम्स वेवलेंथ. What is wavelength? The distance between two successive compressions or two successive rarefactions is called wavelength. You can see the graph students, figure 12.8 है ना, उसमें आप देख सकते हो कि दो कंप्रेशन के बीच में जो ऊपर जो जा रहा है वो कंप्रेशन है और जो नीचे आ रहा है वो क्या है? रेयरफैक्शन है. तो दो कंप्रेशन या और दो रेयरफैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. दो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस. ये जो ग्राफ बनाया है ना, इसमें ग्राफ जो ऊपर की तरफ गया उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द अपर साइड, एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द लोअर साइड इज कॉल्ड ट्रफ. कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस को जब ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ. ऊपर वाला जो साइड होता है कर्व वो क्रेस्ट है और नीचे वाला साइड को हम बोलते हैं ट्रफ. द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, एंड इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड मीटर. नाउ टाइम पीरियड. किसका टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय एन एयर लेयर टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. है ना, एक पूरा कंप्लीट वेव कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. ओके, एक पूरा कंप्लीट वेव बनाने के लिए, कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड्स. देन कम्स फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस ऑफ एन एयर इन 1 सेकेंड, है ना, एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं, जितने टाइम ऑसिलेशंस होते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. है ना, फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, एंड इट्स एसआई यूनिट, एक्चुअली इसका एसआई यूनिट होना चाहिए पर सेकेंड. ओके, पर सेकेंड, बट इट्स एसआई यूनिट इज गिवन एज हर्ट्स, HERTZ, HERTZ, in the honor of the great scientist what? Heinrich Rudolf Hertz. एक्चुअली उन्होंने साउंड के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, इसके लिए ये दिया गया है. ओके, नाउ देर इज अ रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, है ना. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t. ओके, दिस इज द रिलेशन, मतलब दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ओके, सो फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट क्या है? पर सेकेंड या फिर हर्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ एक्सप्लेन इट थ्रू द ग्राफ. अब मैं आपको ग्राफ स्क्रीन पे दिखाता हूँ. सी हियर ऑन द स्क्रीन, ऊपर कंप्रेशन रेफ्रैक्शन दिया है, नीचे ग्राफ भी दिया है. तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन एनी वन साइड, है ना. जो बीच का जो पर्पल लाइन खींचा हुआ है वो आपका मीन पोजीशन है, उससे कितने ऊपर तक आपका ग्राफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ओके, देन वेवलेंथ क्या होता है? दो कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ. देन कम्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमने देखा था और इसका टाइम पीरियड देखा था. ओके, तो ये ग्राफ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए. दिस इज द सेम ग्राफ गिवन ऑन पेज नंबर 164, फिगर 12.8. ओके स्टूडेंट्स, now students let us discuss regarding one more phenomena of sound that is called pitch, one more characteristic of sound. So students, let us take an example. A violin and a flute may both be played at the same time in an orchestra. जब एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा होता है तो उसमें वायलिन और फ्लूट दोनों साथ में बजते हैं. बोथ साउंड ट्रैवल्स थ्रू द सेम मीडियम दैट इज एयर. दोनों एयर के थ्रू ट्रैवल करके आके हमको ईयर्स में सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं. दे अराइव एट द सेम टाइम टू आवर ईयर. बोथ साउंड्स travel at the same speed irrespective of the source, but the sounds we receive are different. दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, सेम टाइम पे आ रहे हैं और सेम टाइम पे हमारे कानों पे गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों साउंड अलग अलग सुन सकते हैं,
है ना, हमको पता है फ्लूट का साउंड कैसा होता है, वायलिन का कैसा होता है. दिस इज वाई दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द साउंड विच इज कॉल्ड पिच. ओके, व्हाट इज पिच? पिच का डेफिनेशन सुन लो स्टूडेंट्स. हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच. ओके, हमारा ब्रेन जो है ना साउंड की फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे समझता है, एनालाइज करता है, दैट इज कॉल्ड पिच. हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच. द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, ओके, वाइब्रेशन जितना फास्ट होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी और पिच भी क्या होगा, हाई. ओके, जब फिर से एक बार स्टूडेंट्स, पिच हाई कब होता है? जितना ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे उतना फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो पिच भी हाई हो जाएगा. ओके, जब वाइब्रेशंस कम होंगे तो फ्रीक्वेंसी भी कम और पिच भी क्या होगा, लो होगा. ओके, तो यू कैन सी द ग्राफ. ओके, जिसका लो पिच ग्राफ कैसा होता है, एकदम फ्लैट होता है, देखो दूर दूर, और हाई पिच ग्राफ कैसा होता है, देखो पास पास में कंप्रेशन से, रिफ्रैक्शन से. ओके, दिस इज फिगर 12.9 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. उसमें ग्राफ दिया हुआ है लो पिच और हाई पिच का. तो वंस अगेन, पिच कैसे हम क्या होता है, ब्रेन, हमारे जब ब्रेन है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को कैसे वो एनालाइज करता है, दैट इज कॉल्ड पिच. ओके, if the vibration of the source is faster then the frequency will be high and hence the pitch will be high. है ना, अगर वाइब्रेशन स्लो होंगे the frequency will be less and the pitch will be low. तो लो पिच साउंड और हाई पिच साउंड का भी आपको ग्राफ दिया हुआ है. ओके, now another quantity which we are going to discuss is regarding the soft sound and louder sound. This depends on the amplitude. एम्पलीट्यूड क्या था, हमने बताया था ना, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऑफ द पार्टिकल ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. है ना, साउंड जो है मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितने डिस्प्लेसमेंट तक गया, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन्ड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड. द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स ऑन द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट. जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं, जितना फोर्स आप ऑब्जेक्ट पे लगाओगे उतना दूर तक वो वाइब्रेट करेगा, और जितना दूर तक वाइब्रेशन जाएगा एम्पलीट्यूड उतना क्या होगा, हाई होगा. ओके, इफ़ वी हिट द टेबल हार्ड वी कैन हियर अ लाउडर साउंड. यस और नो, है ना, क्योंकि जितना हार्ड आप टेबल को हिट करोगे उतना उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एंड हायर द एम्पलीट्यूड द लाउडनेस विल बी हायर. ओके, सो louder sound can travel a larger distances as it is associated with the high energy. तो loud sound मतलब high amplitude. ओके, और अगर soft sound क्या होता है, उसमें less amplitude होता है. so this is loudness. ओके, the quality or timbre of sound is that characteristic which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. Okay, one more definition student you should remember here, a sound of a single frequency is called tone. Okay, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी सिंगल होती है इट इज कॉल्ड अ टोन. अ साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ नोट. है ना, एक ही फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को टोन बोलते हैं और जिसमें सेवरल फ्रीक्वेंसीज मिक्सड होती है दैट इज कॉल्ड नोट. तो ये याद रखना, इसमें हम लोगों ने कितने सारे किए, पिच के बारे में देखा, लाउडनेस के बारे में देखा, टोन क्या होता है, नोट क्या होता है, दिस ऑल थिंग्स यू शुड रिमेंबर. ओके स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. सो उसके हर एक लाइन आपको डिटेल में रीड करना है. नाउ और अनदर टॉपिक इज स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड. तो द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, वी ऑल नो स्टूडेंट्स. And very interesting fact we should understand here is that we should know that the speed of sound is more in solids. It is maximum in solids, less in liquids and least in gases. हमको कैसे लगता है कि साउंड हमको एयर में कितना क्लियरली सुनाई दे रहा है, बट साउंड की स्पीड सबसे कम गैसेस में होती है. ओके, और सबसे मैक्सिमम किस में होती है, सॉलिड्स में होती है. The speed of sound also depends on the temperature of the medium. If the temperature of the medium is more, the speed of the sound is more. Okay, now let us give the relationship between speed, frequency and wavelength. Speed, frequency and wavelength. So actually speed is equals to what, wavelength into frequency. Speed equals to wavelength into frequency. तो हम सब स्पीड को तो हम जानते हैं v से डिनोट करते हैं, हमने फिजिक्स सेक्शन में आगे देखा है. तो v इक्वल्स टू वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा.
दैट सिंबल इज कॉल्ड लैम्बडा, उल्टा वाई जैसे लग रहा है ना, दैट इज कॉल्ड लैम्बडा। ओके, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट्स हम डिनोट करते हैं न्यू से। वो जैसे वी जैसा दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली न्यू है, एन यू, न्यू। इट इज़ अ ग्रीक अल्फ़ाबेट। ओके, तो आपको फॉर्मूला याद रखने का, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और एक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, लैम्बडा अपॉन टी। तो देर आर टू फॉर्मूला टू फाइंड द स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टी और स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ यानी लैम्बडा इनटू न्यू फ्रीक्वेंसी। Okay, these are the two formula to find the speed of the sound. Here student you can see the speed of sounds in different media. आपको याद तो नहीं करने का है, लेकिन आप देख सकते हो कि जो गैसेस है, एयर है, हाइड्रोजन है ना, इन सब में है ना किस तरह से स्पीड देखो कितना है, बहुत कम है, 332 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो वाटर है, लिक्विड है, सी वाटर, ब्लड, उसमें स्पीड देखो बढ़ गया 1000 की रेंज में। अगर आप कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन तक आ जाओ तो देखो 5000 की रेंज में आ जाता है स्पीड। तो इट इज़ लीस्ट इन द गैसेस है ना, एंड मैक्सिमम इन द सॉलिड्स। आपको ये लर्न नहीं करना है स्पीड सारे, ये सारे। हाँ, so let us see once again what is the speed. The rate at which sound travels in a given medium is called the speed. Okay, then speed of sound in air, ये याद रखना, ये जो अभी आपको दिया हुआ है ना, ये सारा आपको याद रखने का स्टूडेंट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? इट इज 344 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट टेम्परेचर? एट 22 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओके, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज हाउ मच? 1500 मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज 5130 मीटर पर सेकेंड। ये सब 20 डिग्री सेल्सियस पे। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑन द टेम्परेचर ऑल्सो। मैंने बताया था मैंने कि 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड कितनी होती है? 332 या 331 मीटर पर सेकेंड। और 22 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाता है? 344 मीटर पर सेकेंड। Okay, the speed of the sound also depends on the humidity. Okay, humidity of the air. Speed of the sound in dry air is less and in humid air it is more. Okay, मॉइस्चर कम होगा तो साउंड की स्पीड कम हो जाएगी, और मॉइस्चर ज़्यादा होगा एयर में तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। So students, by this we end our today's session. Go through the video and NCERT textbook also. Read your NCERT textbook. ओके, हम लोग जो न्यूमेरिकल्स है स्पीड के रिलेटेड वो बाद में मैं आपको करवाऊंगा मैं, बट टिल देन गो थ्रू दिस वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।